We'll be talking about the acidity of carboxylic acids. कल हमने किया methods of preparation और साथ में हमने करी थी कल chemical properties. आज हम करेंगे acidity of carboxylic acid. देखिए acetic acid when put in the water, it will be giving you hydronium ion. ठीक है? Ka, that is a dissociation constant of acid. क्योंकि ये weak acid है तो इसमें equilibrium का sign होगा. यहाँ पे Ka जो है that is acetate ion concentration into hydronium ion concentration divided by acetic acid. जितनी ज्यादा Ka की जितनी ज्यादा hydronium ion concentration होगी उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी. ठीक है? तो more is the concentration of hydronium ion, more acidic is an acid. तो एक छोटी सी चीज याद रखना कि larger is the value of Ka, the stronger is the acid. उसके बाद pKa, this is minus log Ka, this is log 1 by Ka. जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी pKa की वैल्यू कम होगी. Larger is the value of Ka, lesser is the value of pKa. Larger is the value of Ka, the stronger is an acid. It means smaller is the value of pKa, the stronger is the acid. जितना कम वैल्यू होगी pKa की उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. pK लार्जर, हाँ ठीक लिखा मैंने, यहाँ पे लार्जर आना होगा. The stronger is the acid. The stronger is the acid. ठीक है? अब देखिए अगर आपको पेपर में ये मैंने इसलिए नहीं लिखा because I wanted to discuss some of the things simultaneously. अब देखिए आपको दे दिया एसिटिक एसिड, आपको दे दिया फॉर्मिक एसिड और आपको दे दिया फ्लोरोएसिटिक एसिड. आपको फ्लोरोएसिटिक एसिड दे दिया. यहाँ पे सबके लिए pKa की वैल्यू दे दी. This is 0.7 10 raised to the power 7. This is a hypothetical value. This is 3 into 7 into 10 raised to the power 7 and this is about 9 into 10 raised to the power 7. आपसे कहा गया arrange these acids in the increasing order of acidic character. Increasing order of के values में चलती है. 0.8 to 10 raised to the minus 5 पहले. नहीं इसकी नहीं है, इसकी 9 होगी, इसकी 7 होगी और इसकी 0.8 होगी. ऐसी होगा. Increasing order of acidic character. ये छोटा सा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से बन सकता है pKa की वैल्यू देखे या Ka की वैल्यू देखे. अब देखिए जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. तो अगर हम इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 कर लें, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 7 आनी चाहिए थी और यहाँ पे 9 आनी चाहिए थी. ये मैं बताऊंगी अभी क्यों. अगर इस तरह से वैल्यूज गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि pKa की वैल्यू के बेसिस पे बताएं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो सिर्फ इस लाइन को याद रखना कि स्मॉलर इज द pKa वैल्यू तो स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? 3 वाला जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फॉलोड बाय 1 एंड फॉलोड बाय 2. ठीक है? जितना बड़ा, एक मेरी बात सुनो, if you are comparing the aliphatic acid, जितना बड़ा alkyl group होगा उतना कम उसका acidic character होगा. Now the next question, why carboxylic acids are acidic in nature and why they are stronger acid than phenol? अगर मैं acetic acid की बात करती हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं. This is acetic acid. ध्यान से देखना सब लोग. This is acetic acid. अब acetic acid में क्या है? There is resonance. ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, they will come up here and this will go up here and it will give you CH3 CO with the negative charge, double bond O and H here. तो ये है आपके acetic acid का resonance. उसके बाद if you talk about acetate ion, ठीक है? If you talk, this is acetic acid. This is acetic acid. I'll be talking about acetate ion. Acetate ion is like this with the negative charge and this is like this. ठीक है? अब देखिए acetate ion में क्या होगा? ये जो दो electrons हैं, they will come up here and this electrons will go up here.
So it is CH3CO with a negative charge, and this is double bond O. This is 1 and this is 2. सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है कि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है? 1 वाला स्टेबल कि 2 वाला स्टेबल? 1 or 2? 2 वाला स्टेबल. This is more stable. Why? Because does not involve separation of. Yes, because it does not have charge separation. Does not have charge separation. अरे भाई, अगर कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम जो था, this was acetate ion. This was acetate ion. अगर एसिटेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक एसिड जो है इसकी काफी टेंडेंसी रहेगी प्रोटॉन को लूज करने की, क्योंकि अगर ये एक प्रोटॉन लूज करता है तो इट फॉर्म एन एसिटेट आयन व्हिच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, so it will be losing a proton. Is it clear? Now the question arises, why it is a stronger acid than phenol? अगर ये क्वेश्चन आए, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोक्सिलेट आयन के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए इस तरह से. देखिए इधर इन दोनों को देखें, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक है. ये आपका है कार्बोक्सिलेट आयन. एक स्ट्रक्चर बनाए फिनेट आयन. फिनेट आयन वुड बी लाइक दिस. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर फिनेट आयन बनाए तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. दिस इज योर फिनेट आयन, ठीक है. कार्बोक्सिलेट आयन बना जब ये वाला आपका आयन बना जब एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन लूज कर दिया, और जब फिनॉल ने प्रोटॉन लूज कर दिया तो आपके पास क्या बना? दैट इज फिनेट आयन. दोनों में से कौन सा स्टेबल है? कौन सा स्टेबल है? दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड हैज मोर टेंडेंसी. Carboxylic acid has more tendency to lose a proton, than phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिनॉल प्रोटॉन लूज कर रहा है, फिनॉल भी प्रोटॉन लूज कर रहा है, ठीक है. ये सुने ध्यान से, जैसे इसने एक प्रोटॉन लूज किया वैसे ही फिनॉल ने भी एक प्रोटॉन लूज करना है, ठीक है. So I am not comparing the acetic acid, I am not comparing the phenol, I am comparing the acetate ion and I am comparing the finate ion. इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से कार्बोक्सिलेट आयन के लिए मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, फिनॉल के लिए मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया. हमने रेगुलर क्लास में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में. Just draw the resonating structures, इनके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए और आप कहें यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रही, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रही है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी, कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी प्रोटॉन लूज करने की फिनॉल से काफी ज्यादा है. Is it okay with everyone? Is it fine? Then next we'll be talking about that is effect of. देखो जरा नोट्स में क्या है ये effect of substituents on the acidic character of aromatic acid, on acidic character of aromatic acids. यहाँ पे बहुत सारी चीजें. पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो काम है वो काफी कम है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे. We'll be talking about जो घरों में बैठे हैं. I'm shifting the laptop position. Now you see effect. सबसे पहले हम बात करते हैं that is effect of electron donating group. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ. यहाँ पे दिस इज अ बेंजोइक एसिड.
ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है। जब ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को अपनी तरफ ले लेना है तो उसने बेंजोएट आयन बनाना। दिस इज योर बेंजोइक एसिड। अब क्या होगा, बेंजोइक एसिड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू ड्रैग दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड डिफिकल्ट, ठीक है। ये बात क्या नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कि ऑक्सीजन की कोई इच्छा नहीं है कि इस प्रोटॉन को अपनी तरफ ले जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को काफी बढ़ा दिया। Therefore, electron donating group decreases the acidic character of aromatic acids. ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, of aromatic acids। ये समझ में आया सबको, ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब क्योंकि ये एसिड है तो क्योंकि ये एसिड है तो ऑब्वियसली ये प्रोटॉन को लूज करेगा। प्रोटॉन को लूज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, पहले तो प्रोटॉन को लूज नहीं करने दे रहा था, अब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये क्या करेगा, EDG intensifies the negative charge on oxygen atom। ऑक्सीजन एटम पे वो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा और उसको डीस्टेबलाइज कर देगा। इट मींस दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, देन व्हाई वुड इट लूज इट्स प्रोटॉन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इफेक्ट इज maximum at para position, ठीक है। चाहे एसिड का वीकनिंग इफेक्ट है या एसिड का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, दैट इज मैक्सिमम एट द पैरा पोजीशन। क्लियर? अगर क्वेश्चन आए, चलिए इफेक्ट ऑफ, पहले और बात कर लेते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे, जैसे ये देखिए, दिस इज COOH and this is an alternate double single bond. This is electron withdrawing group. Electron withdrawing group क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और लॉस ऑफ प्रोटॉन जो है वो फैसिलिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इट फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ OH bond and increases the acidic character, ठीक है। इसमें ये चीज जो है ये सबके दिमाग में रहनी चाहिए। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। तो इंक्रीजेस द एसिडिक करेक्टर, कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब जब बन गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ये बहुत काम करता है। अब देखिए, अब जब यहाँ पे बन गया बेंजोएट आयन, तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एंड अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो डिस्पर्सल कर देगा नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल कॉज डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अगर वो डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पहले तो बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रहा है, उसके बाद बॉन्ड को जो भी बना बेंजोएट आयन उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो क्या ये इफेक्ट जो है, दिस इफेक्ट इज मैक्सिमम एट द पैरा पोजीशन, इज मैक्सिमम एट पैरा पोजीशन। एक बात दिमाग में रखना, जो पैरा वाला है
वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और वो वीकेस्ट एसिड होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट भी मैक्सिमम पैरा पोजीशन पे हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट भी मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, पैरा पोजीशन पे हो रहा है। और बहुत सारी बातें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट को, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कैसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जैसे देखिए आपके पास आ गया फ्लोरो एसिटिक एसिड, मैंने एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन जो है उसको निकाल दिया, आई एम राइटिंग हियर दैट इज फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, एंड आई हैव हियर क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड। अब दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे हैव गॉट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, याद रखना। अब क्या है, इट हैज गॉट स्ट्रॉन्गर minus I effect and this has got weaker minus I effect, तो अगर हम दोनों की बात करें तो this will be the strongest, ठीक है, ऐसे कोई भी लगा सकते हैं, you can take this also, अगर आपके पास कोई एलिफेटिक आ गया, एरोमेटिक आ गया है, जैसे CF3 लगा दिया और यहाँ पे it is COH and this is CCl3, इस तरह से लगा दिया, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो इसमें भी आप देखिए दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो फर्क है, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सो दिस विल बी मोर एसिडिक, राइट। द सेकंड इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड, कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए मैं लिख रही हूँ, दिस इज माय एसिटिक एसिड, दिस इज फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाला, एक फ्लोरीन लगाया, फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकाले और दो फ्लोरीन लगा दिए, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकाले और लगा दिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, more are the number of electron withdrawing groups attached, more acidic is acid, ठीक है, उतना ही एसिडिक एसिड होगा। तो अगर मैं इसको नंबर दे देती हूँ, दिस इज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड दिस इज फोर्थ नंबर, तो अगर हम इन चारों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फोर्थ, फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय सेकंड एंड फॉलोड बाय फर्स्ट, ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच करती है उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो गया। अच्छा एक और चीज देखें, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये आया तुम्हारे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का रिलेटेड तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन आया कि दिस इज एसिटिक एसिड and this is formic acid, and this is formic acid, which is a stronger acid, which is a stronger acid, formic acid this acetic acid, ये जो ग्रुप है यहाँ पे इसका प्लस साइड इफेक्ट है, अगर प्लस साइड इफेक्ट किसका होता है, that is electron donating groups, all electron donating groups has got the plus side effect, इसका भी plus side effect है, इसमें कोई plus side effect नहीं है, so this will be the stronger acid, ठीक है, पहले इतना कर लो। See here, जो एक और फैक्टर हमारा रह गया, एक हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये तुम्हारी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है,
This is your alpha chloropropanoic acid. Alpha chloropropanoic acid. ठीक है जी. अब देखिए, this carbon atom is alpha, which is next to the COH. This is alpha chloro and 3 carbon atom है तो it is propanoic acid. Then we have Cl, CH2, CH2 and COH. This is beta chloropropanoic acid. ठीक है. अब देखिए, alpha and beta. The more closer is the electron withdrawing group to that of the COH group, the more is its effect. ठीक है. यहाँ ये जो है, more closer is the electron withdrawing group to COOH group, the stronger is its effect. तो alpha chloropropanoic acid जो है वो stronger होगा as compared to the beta chloropropanoic acid. अब एक बार ढंग से सुने, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है हमने कल से रिवाइज कर लिया है. पहले हमने किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट कर रही हूँ. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पिक्चर बोर्ड की लेके आइए दिमाग में. एक हमने किया था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बोथ साइड्स. उधर हमने किया था ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. उधर मैंने कर दिया था ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन. फिर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी थी साइनाइड्स की. फिर हमने अमाइड्स के ऊपर नाइट्रस एसिड से ट्रीट कर दिया था. उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस कर दी थी एस्टर्स की. तो उधर फिर उसके बाद हमने असेंट ऑफ सीरीज करी. असेंट ऑफ सीरीज में हमने किया कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स और एक हमने किया था कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. और एक मेथड हमने किया था जब क्लोरोफॉर्म को हम NaOH के साथ 3 NaOH के साथ ट्रीट कर गए थे. वाटर निकल रहा था हर बार. And this is again the similar to that of the Riemann-Evan reaction. These were all the methods of preparation. Then we have done the 3 physical properties जिसमें हमने कहा था कि जो boiling point है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है as compared to alcohol क्योंकि extensive hydrogen bonding है. फिर हमने कहा boiling point बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन बढ़ती जाएंगी. उसके बाद हमने कहा था मेल्टिंग पॉइंट. वो हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी थी. अगर तो सब्सिक्वेंट मेंबर्स ले रहे हो और उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो ऑल्टरनेशन इफेक्ट को लेके आना है तो जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि उसमें मोर सिमेट्री द क्लोजर इज द पैकिंग. ये हमने किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिर हम आए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आए तो COH में हमने कहा भाई हाइड्रोजन की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी व्हिच इज शोइंग दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. एक हमने रिएक्शन सोडियम के साथ किया, एक हमने NaOH के साथ किया, एक सोडियम कार्बोनेट के साथ किया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया, सब में सोडियम एसिटेट बना. लास्ट रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ किया जहां पे एल्केन बनेगा. ठीक है. मेरी बात याद रखना, जो 2 चैप्टर्स है ना आप लोगों के दैट इज अमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों जो हैं दे कैन लीव देयर हाइड्रोजन इजीली because of which both of them can react with the Grignard's reagent to form the alkane. उसके बाद हमने reactions किए जिसमें OH group involved था, है ना, जिसमें पूरा OH group involved था. ये हमने सारे reactions किए पिछले चैप्टर से. हेलोअल्केन से हमने एसिड क्लोराइड बना दिए. एसिड क्लोराइड बनाया जब हमने थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया, PCl5 से रिएक्ट किया जब हमने PCl5 उससे रिएक्ट किया क्या कहते हैं PCl3 से. फिर हमने एक रिएक्शन किया जिसमें हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो किया. ठीक है. फिर एक रिएक्शन किया जिसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड्स बना दिए. ठीक है. these were all the reaction which we covered under this category. फिर हमने एक रिएक्शन किया जिसमें CO ग्रुप इन्वॉल्व था. that was only one reaction, that is a reduction of carboxylic acid. So reduction of carboxylic acid leads you to the formation of alcohol. फिर हमने एक रिएक्शन किया जिसमें पूरा का पूरा COH ग्रुप इन्वॉल्व था. That was decarboxylation reaction, which was the major one. और एक रिएक्शन हमने और किया था जिसमें हमने HI के साथ रिडक्शन कर दी थी और मैंने कहा ये मैक्सिमम गलती करती जनता क्या बनेगा एल्केन. कल हो गई थी ये सारी बातें, आज सारी बातें हो गई. दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज थॉरली डन.
ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ है, कल मैंने कुछ ऐसी भी बातें कही थी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH ग्रुप है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो जितनी भी बातें मैंने करी, सल्फोनेशन करी, क्लोरीनेशन करी, नाइट्रेशन करी, वो कहाँ करी थी? मेटा पोजीशन में। सेम ऐसी बात एल्डिहाइड्स की टोन्स के लिए, जस्ट सी, एल्डिहाइड्स की टोन्स के लिए सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CHO ग्रुप, और दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, द सेम रिएक्शन। अब ये कल किसी ने पूछ लिया था तो मैंने कहा पूछ लिया तो मैं लिख के बता देती हूँ। द सेम रिएक्शंस यू कैन चेक ऑन द बोर्ड, इट वाज रिटन द सेम आई एम गोइंग टू राइट। चाहे आप एल्डिहाइड ले लें, चाहे आप कीटोन ले लें, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये क्या करेगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर ले जाएगा, बिकॉज ऑफ विच the positive charge will be acquired by all the ortho and para position. This is positive charge, a bond will come here, this will be moving here, and the same reaction, कल वाले reaction check खोल के देख लें, यहाँ पे OH था, that's it, ठीक है। अब यहाँ पे it will be a bond here, positive charge, CO negative, and like this the electron will move here and it will be, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H, एंड इट विल बी अ बॉन्ड हियर एंड लाइक दिस। देखिए हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आया, पर मेटा पोजीशन में हमेशा there was a rich density of electron. Because there is a rich density of electron, so can we say that CHO group or this group is meta directing? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे I will be writing some of the reactions. ये बिल्कुल जो कल काम किया था ना, ये बिल्कुल लास्ट ऑफ द चैप्टर मैंने उठाया है एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, क्योंकि वो इसके साथ रिलेटेड है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन में कुछ भी ले लेते हैं, ये जो R मैंने लिखा है, R कैन बी इज इक्वल टू H और एनी एल्काइल ग्रुप। ये सारी जनता याद रखे, ये जो कंपाउंड है, दिस इज योर एसिटोफिनॉन। Usually it is a common name that will be asked to you, so it is your acetophenone. अब देखिए आप इसका जो मर्जी करें, क्लोरीनेशन करें in the presence of anhydrous aluminium chloride, that group will be coming at the meta position. अगर आप इसमें concentrated नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो नाइट्रेशन विल बी हैपनिंग एट द मेटा पोजीशन। और अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो इट विल बी सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है, विच विल बी कमिंग एट द मेटा पोजीशन। कल भी मैंने यही रिएक्शंस किए थे अगर याद, ठीक है। अब कुछ tests shown by aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones जो दोनों के दोनों जो हैं वो टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट की बात करेंगे। वो ही टेस्ट हैं जो aldehydes और ketones दोनों शो करते हैं। The first test is 2,4-DNP test, ठीक है। DNP क्या होता है? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसका पूरा नाम जो है दैट इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, जो यहाँ बैठे हुए हैं। कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड और शैल आई राइट हियर ऊपर? ये देखिए ये है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। मेरी बात सुन ले, मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। दिस कैन बी your this R can be your H or it can be alkyl group. If it is an aldehyde, एक R जो है वो पक्का ही H होगा, ठीक है। So क्या हुआ? It is reacting with 2,4-dinitrophenyl hydrazine। बनाना कैसे स्ट्रक्चर? हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 NH2, ठीक है।
अब क्या करना है, एक H उठा दो, यहाँ पे फिनाइल सबको दिख रहा है, फिनाइल लगा दो। दिस इज अ सेकेंड पोजीशन पे, और चौथी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। दिस इज 2,4-dinitrophenyl hydrazine. What will be happening? There will be elimination of water. ठीक है, तो ये स्लाइड एसिडिक मीडियम में यहाँ डाल सकते हैं, स्लाइड एसिडिक मीडियम, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग ऑरेंज पीपीटीज, ऑरेंज रेड पीपीटीज आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है विच इज शोन बाय बोथ, दिस इज ऑरेंज रेड ऑरेंज पीपीटीज। ठीक है जी, ये जो 2,4-dinitrophenyl hydrazine वाला रिएक्शन है, ये बहुत सारे बातों में कहा गया है। और एक रिएक्शन, एक और टेस्ट है which is shown by all the aldehydes and ketones, that is sodium bisulfite test। ठीक है, इसमें क्या होता है, you take either an aldehyde or a ketone। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका एल्डिहाइड है तो उस केस में जो एल्काइल ग्रुप है वो पक्का और पक्का हाइड्रोजन होगा। It will be reacting with sodium bisulfite and it will be giving you the white PPTs. This is R here. The bond will bifurcate. This will be बोलिए OH and SO3 and A. This will be white crystalline solid. ये आपका white crystalline solid बनेगा। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड्स देंगे एकदम से। अब डिस्टिंक्शन कैसे करनी है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कल काफी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मैंने याद करा देना, डोंट मिस द क्लास टुमारो। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो घरों में बैठे हैं, जो आ सकते हैं, मस्ट काम। देखिए जी, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, सिर्फ 2-3 टेस्ट याद करें, कोई जरूरी नहीं है सारी कहानियां याद करके जानी होती है। जो लिखना है वो एक्यूरेट लिखना, उन्होंने ये थोड़ा कहना पर्टिकुलरली मेरे को यही टेस्ट बताओ। ठीक है, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो इट विल बी फॉर्मेशन, सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि टॉलिन्स रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और aldehydes are very prone to oxidation, so aldehydes will react with the weak oxidizing agent but ketones will not। उसके बाद ऐसे ही हम करेंगे फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, क्या इनकी कॉम्पोजिशन है, क्या सब है, वो मैं कराऊंगी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रेड कलर के पीपीटीज आ जाएंगे हीट करने पे, यहाँ पे कुछ नहीं होना। अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट करोगे, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट जो है वो भी रेड कलर के पीपीटीज देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होना। ठीक है, अगर तुम शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट करोगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट करोगे, यहाँ पे पिंक कलर जो है दैट विल बी रिस्टोर्ड और यहाँ पे कुछ भी नहीं होना। सो एल्डिहाइड कीटोन्स में सिर्फ आज हमने एक बात, 2-3 बातें कही रादर। एक हमने कहा कि जो एल्डिहाइड कीटोन में जो ग्रुप है CHO या COR, दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एरोमेटिक एसिड्स में जब भी कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमेशा मेटा पोजीशन पे ही ग्रुप अटैक करेगा। फिर हमने वो टेस्ट किए आज जो ये शो करते हैं कि आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स कैसे, उनकी डिटेक्शन कैसे होनी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2,4-DNP डालेंगे तो ऑरेंज रेड पीपीटीज आएंगे, सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आएंगे। ये एल्डिहाइड्स भी देंगे और कीटोन्स भी देंगे। डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, 4 नेम्ड रिएक्शन, टॉलिन्स रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट। अगर कलर भूल जाए यहाँ पे लिख देना पॉजिटिव नेगेटिव, उसका भी क्रेडिट मिल जाना है। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने कवर किया, पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत ढंग से याद कर लिया। यहाँ आई होप याद हो गया होगा। जो ऑनलाइन बैठे हैं याद हो गया कि नहीं?